You are now unmuted. Hello everyone, can you hear me? Good morning. करते करते भी लेट होएगी थोड़ी क्लास. हेलो. सो चलिए तब तक आ जाएंगे सब लोग. कुछ रिवीजन कराता हूँ आपको एक सेक्शन का. कल हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 13 किया था लास्ट में, है ना. सेक्शन 13 वॉज डीलिंग विद वॉट. Section 13 was dealing with what? Inquiry report. And in that case, in the inquiry report, you have seen what? Inquiry report में आपने क्या देखा था कि one second, that there may be conclusion that allegations has not been proved. Accordingly recommendations दी जाएंगी and there may be the conclusion that allegation has been proved. Though there were two conclusions. Fine, there were two conclusions and accordingly recommendations were made. If you remember it, you remember or not? तो let me know ये इंक्वायरी कितने दिनों में कंप्लीट कर देनी चाहिए. इंक्वायरी कितने दिनों में कंप्लीट कर देनी चाहिए. कम ऑन. What is the time duration? What is the time duration? If there is a complaint, मोनिका भारती मैडम पढ़ाई किया करो थोड़ा सा आप. ऐसे में नहीं, कोचिंग से कुछ नहीं होता, पढ़ेंगे नहीं तो आप. अब मुझे बताइए, अगर इफ़ देर इज कंप्लेंट अगेंस्ट द एम्प्लॉयर, तो विच कमेटी विल मेक इंक्वायरी. कौन सी कमेटी इंक्वायरी करेगी. व्हेन देर इज ए कंप्लेंट अगेंस्ट द एम्प्लॉयर. Anita, good, very good Anita. It means you are studying. Very good. Local committee करेगी, सही है. And now you let me know in case committee comes to conclusion arrives at conclusion that allegation against respondent has been proved. Allegation has been proved. This is the conclusion. Then what will be the follow up? What will be the follow up procedure? क्या होगा follow up procedure? समझ रहे हैं बात आप. Very good Sonam, very good. What kind of reliefs can be requested by the aggrieved woman under section 12. Which reliefs can be requested? कौन कौन से relief request किए जा सकते हैं. Good Sonam, good. Salary transfer, leave. And what is the maximum duration of leave? 3 months leave. Very good Anita. Good. Sanya, why are you not responding? Mukhi Gautam, where are you? Anamika, okay.
whether monetary settlement can be made as a basis of conciliation. Which section talks about conciliation? What will be the recommendation? What will be the recommendation if allegation has not been proved? What will be the recommendation if allegation has not been proved? Good, Anamika. If prima facie case exists in case of domestic worker, if prima facie case exists in case of domestic worker, what will be the procedure? What will be the procedure? Prima facie case exists in case of domestic worker. सेवन डेज, वेरी गुड. 7 डेज का ध्यान रखेंगे आप लोग. 7 डेज. ठीक है, चलिए साहब, अब हम लोग बढ़ते हैं आज के सेक्शन पर. आज की कार्रवाई बढ़ाते हैं आगे. तो आप लोग थोड़ा रिवीजन बढ़ाइए अपना. सेक्शन 9 का रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी हमें, तो मैं उसको सही कर लेता हूँ पहले. So, is there any audio problem? Audio video problem? नहीं, तो क्लास बढ़ाते हैं अगले आगे को. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए, so far we have done up to section 13 of the Sexual Harassment Act. Fine. Now we are on this section 14. Section 13 तक हम कर चुके हैं. This is section 14. Again, very very important section. Section 14 is very very important for your prelims, very important for your mains also. Please see the words. See, हम लोगों ने क्या देखा था section 13 में. इसको हम we can't understand unless we remember what was the mandate of section 13. हम section 14 को तभी समझ सकते हैं जब हमें section 13 अच्छी तरीके से याद हो. section 13 में क्या था हमारे पास? section 13, you see the board. Section 13 was regarding the inquiry report. And there can be two conditions. Number 1, allegation proved, allegation not proved.
allegation not proved. This can be we have seen these two kind of outcomes of the inquiry. दो आउटकम हो सकते हैं, एलिगेशन हैज़ बीन प्रूव्ड और एलिगेशन नहीं प्रूव हुआ तब क्या होगा. अब एक नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं, ये भी एक कंक्लूजन हो सकता है कि एलिगेशन प्रूव तो है ही नहीं, बट ये भी एक कंक्लूजन है कि जो कंप्लेंट है दैट वाज मैलिशियस, फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेंट थी. दैट कंप्लेंट इन इटसेल्फ वाज फॉल्स. देखो दोनों में अंतर है. एक है कि यू आर नॉट एबल टू प्रूव समथिंग, आप किसी बात को साबित नहीं कर पा रहे हैं, ये एक बात हुई. दूसरी बात यह है कि अगर ये बात साबित हो जाए कि ये तुम झूठ बोल रहे थे, मैंने कहा कि मेरे घर में चोरी हुई लेकिन मैं इसको साबित नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये हुआ एब्सेंस ऑफ एविडेंस, इनसफिशिएंट एविडेंस. आई एम नॉट एबल टू प्रूव माई द फैक्ट्स एलिज्ड बाय मी. दिस इज अनदर थिंग कि मैं ये प्रूव हो जाए कि सर यहाँ तो कोई वारदात ही नहीं हुई, चोरी की कंडी हुई नहीं, ये इंश्योरेंस से क्लेम लेने के लिए झूठ बोल रहे हैं इस तरीके से. तो फॉल्स कंप्लेंट वाली बात दूसरी हो गई. तो एक तरीके से यू कैन सी कि इंक्वायरी रिपोर्ट तीन तरीके, देयर कैन बी थ्री कंक्लूजन्स. नंबर वन, एलिगेशन हैज बीन प्रूव्ड, एलिगेशन हैज नॉट बीन प्रूव्ड, एंड नेक्स्ट कैन बी व्हाट, फॉल्स कंप्लेंट का भी हो सकता है कि कंप्लेंट वॉज फॉल्स कंप्लेंट भी हो सकती है. या तो दैट इज टेकन केयर बाय सेक्शन 14 और यहीं से आप पढ़ेंगे. और इसीलिए आपके लिए प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पर आपसे 5 मार्क्स में मेंस में क्वेश्चन पूछ लेंगे. इफ द कंप्लेंट इज फाउंड टू बी फॉल्स देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट, इस तरीके से पूछेंगे आपसे. ठीक, तो प्लीज गो टू द direct language of this, and this is, please see this same language as in case of section 13. Internal committee or the local committee, as the case may be, arrives at conclusion. This is the conclusion that the allegation is malicious. And I show you section 13 as well. दिस वॉज, कंपेयर कीजिए, एलिगेशन हैज नॉट बीन प्रूव्ड, सेम सेटिंग में दिखाई देगा आपको, एंड एलिगेशन हैज बीन प्रूव्ड, एंड सेक्शन 14 इज डीलिंग विद व्हाट, दैट एलिगेशन इज मैलिशियस अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट. अब यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी बात ये भी. देन व्हाट विल बी दिस, that the allegation is malicious or the aggrieved woman or any other person making the complaint has made the complaint knowing it to be false. अब यहाँ पर आप देखो, यहीं पर चलिए और कर देते थोड़ा सा, or aggrieved woman or any other person making the complaint has produced any forged or misleading document. देन ये जो इसी को समझते हैं. पहले हम देखिए इन दो तीन फाइंडिंग्स को समझते हैं कि व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट. नंबर 1 फाइंडिंग क्या है, दैट एलिगेशन इज मैलिशियस. एलिगेशन इज मैलिशियस का मतलब क्या हुआ कि ये जो आरोप लगाया गया है वो दुर्भावनापूर्ण तरीके से लगाया गया है. दैट इज देयर इज ए मेंस रिया, गिल्टी माइंड है. द पार्टी दैट इज व्हाट, the aggrieved woman made this allegation with malified intention. दुर्भावना से प्रेरित होकर के उसने आरोप लगाया है. ठीक है, तो ये इसे कहते हैं malicious होना. She wants to malign the reputation of the respondent. She want to take the vendetta for something. She want to take the revenge of something. दुश्मनी निकालना चाहते थे किसी भी तरीके से. There may be so many reasons at the workplace. So this is called the malicious. Arrives at the conclusion that the allegation against the respondent is malicious. बात समझ में आ गई यहाँ तक. And next is what, that दो बातें की हैं. Or the aggrieved woman, ये देखिए इसको ऐसे पढ़िएगा, or the aggrieved woman
has made the complaint knowing it to be false. Agreed woman, पीड़ित महिला, agreed woman was defined, if you remember, by section 2A. This was 2A, remember it, 2A. Fine. तो agreed woman has made the complaint knowing it to be false. ये this is the finding of the inquiry report या committee that this woman has made the complaint. इन्होंने complaint फाइल की है knowing, ये जानते हुए, knowing it to be false, ये जानते हुए कि ये झूठ है, तब भी इन्होंने ये कंप्लेंट फाइल की है. दिस मे बी द वन ऑफ द फाइंडिंग्स. तो पहली फाइंडिंग में क्या आया कि मैलिशियस है, एलिगेशंस आर मैलिशियस, दुर्भावना से प्रेरित हैं. कई बार क्या होता है कि दुर्भावना से प्रेरित नहीं है लेकिन झूठे हैं, है ना. ठीक है, आपकी कोई दुर्भावना प्रूव नहीं हो रही, दुर्भावना नहीं थी, यू डोंट हैव एनी मैलिफाइड इंटेंशंस अगेंस्ट हिम, बट स्टिल यू नो इट, आप जानती थी कि आप झूठ बोल रही हैं. इवन देन यू मेड दिस कंप्लेंट, even then you made this complaint. If this is, or sometimes you see this part. Now you read it like this. Now or any other person making the complaint has made the complaint knowing it to be false. Sometimes complaint is made not by the agreed woman but by any other person. Sometimes, what I am saying, sometimes complaint is made not by the agreed woman. Agreed woman के द्वारा complaint फाइल नहीं की गई है. किन के द्वारा फाइल की गई है? किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा की गई है. अभी अन्य व्यक्ति कौन आ गया? तो if you remember, please go to section 9. You see section 9. This is what, यहाँ पर section 9 clause 2 है ये. This is section 9 clause 2, where the agreed woman is unable to make a complaint. This is a situation when the agreed woman is unable to make the complaint on account of her physical or mental incapacity. फिजिकल और शारीरिक या मानसिक असमर्थता के कारण वो महिला अपनी कंप्लेंट नहीं दे पा रही है, और शी हैज़ डाइड, और उसकी डेथ हो चुकी है, और अदरवाइज कोई अन्य कारण हो सकता है. देन हर लीगल हेयर और सच अदर पर्सन में एज में बी प्रिस्क्राइब्ड में मेक द कंप्लेंट. तो सेक्शन 9(2) में जो व्यक्ति है, सेक्शन 9(2) में कौन व्यक्ति कंप्लेंट कर रहा है और कब कर रहा है? व्हेन द वुमेन हैज इज नॉट व्हेन द वुमेन हैज डाइड, या तो महिला जो मर चुकी है, मृत हो चुकी है, otherwise she is not able to make complaint because of any reasons. mental incapacity हो सकती है, physical incapacity हो सकती है, और for any other reason she is not able to make the complaint. in that case any other person make the complaint. फिर कोई अन्य व्यक्ति कंप्लेंट करता है. he can be her legal heir, उनका उत्तराधिकारी हो सकता है, या कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है. तो सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट दैट पर्सन. अगर हम यह बात करें ये, or any other person making the complaint, you will see section 9(2) में जिसका जिक्र आता है आपका. आप, आई बिलीव कि आप समझ पा रहे होंगे इसको, हाँ या ना बताइए, समझ पा रहे हैं? तो or any other person making the complaint has made the complaint knowing it to be false. ये व्यक्ति जानता था कि this complaint is false. in that case, तो this is the factual position. ये हुई आपकी फैक्चुअल पोजीशन. दिस इज द फाइंडिंग और आउटकम ऑफ द आउटकम ऑफ व्हाट? आउटकम ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट. इंक्वायरी विच वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेंट फाइल्ड अंडर सेक्शन 9 में कंप्लेंट फाइल हुई, 10 में कंसलेशन नहीं हुआ, 11 में फिर जाकर के इंक्वायरी हुई, और 13 में और 14 में रिपोर्ट्स आ रही हैं. 13 में रिपोर्ट आई कि हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड, और इन एडिशन 14 में ये बात प्रूव हो गई कि दिस इज मैलिशियस और
फॉल्स टू द नॉलेज ऑफ द मेकर ऑफ द कंप्लेंट। जो व्यक्ति कंप्लेंट कर रहा था उसकी जानकारी में ये बात थी कि वो कंप्लेंट झूठी है। कम ऑन, यहाँ तक बात समझ में आपको आई या नहीं आई, जल्दी बताइए। And next is what, same on the same lines, or the aggrieved woman or any other person has produced forged or misleading documents. तो complaint is not false, complaint is not false, complaint is not malicious, but this is the third situation when the documents are forged, when they are producing the either she may be the aggrieved woman, you know it, and now any other person you know it। अब जिसकी हम बात कर चुके 9(2) में who is making the complaint, है ना। so he has produced forged, कूट रचित दस्तावेज और मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स पेश करता है। वो दो शब्द दिए गए, एनी forged document, it means he himself or through anything, through any other person, he has forged those documents, उन डॉक्यूमेंट्स को बनाया गया है, और मिसलीडिंग, और इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए गए जो मिसलीडिंग है अपने आप में। तो ये हुई फाइंडिंग्स ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट। इंक्वायरी का जो आउटकम है वो ये हुआ, नंबर 1, इट मे बी द कंप्लेंट मे बी फॉल्स, एक बात हुई कंप्लेंट। दूसरी बात, इट मे बी दैट ही नोज दैट कंप्लेंट इज फॉल्स, दूसरा ये हुआ। और थर्ड ये हुआ कि उसने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए हैं वो फोर्स्ड हैं और या फिर वो मिसलीडिंग है। तो इफ इट हैपन्स, अगर ऐसा होता है, देन व्हाट विल हैपन, क्या, देन इन दैट केस इट मीन्स कमेटी, इट मे बी IC, it may be LC, it may be IC or LC, it may recommend to whom, to the employer, IC will recommend to the employer or to the district officer, LC recommends to the district officer। तो it may recommend to the district officer to take action as the, or to take action as the case may be against the woman और द पर्सन हु हैज़ मेड द कंप्लेंट। किसके खिलाफ, उस महिला के विरुद्ध या उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने कंप्लेंट की है और कैसे, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सर्विस रूल्स एप्लीकेबल टू हर और हिम। सो यहाँ पे देखो जो एक्शन लिया जाता है, द एक्शन टेकन अंडर सेक्सुअल हरेसमेंट इज in accordance with the provisions of service rules applicable to such person। तो in this case when the respondent is found guilty, जब respondent को आप मान रहे कि he is guilty, respondent is found, allegations are proved against him, then you have seen what was the recommendation, take action as per service rules against him। जो सर्विस रूल्स उस पर एप्लीकेबल होते हैं उसके अनुसार आपको एक्शन लेना है, ठीक। that was same thing is now opposite to that। now if it is the outcome that woman, aggrieved woman has made false complaint, filed misleading documents, filed false documents, maliciously filed the complaint, in that case action will be recommended against her। and what will be the action, again if that lady is governed by service rules, if that lady is governed by those service rules, कुछ सर्विस नियमावली से अगर वो गवर्न होती है तो जो एक्शन सर्विस रूल्स में हो सकते हैं वो एक्शन उसके विरुद्ध लिया जाए। ये हुआ एग्रीड वुमन के लिए। एंड इफ द कंप्लेंट इज मेड बाय सम अदर पर्सन, अगेन that the action be taken against him as per the service rules। तो सेम है, सेम एक्शन है कि अगर जो एक्शन रेस्पोंडेंट के विरुद्ध तब लिया जाता इफ ही इज फाउंड गिल्टी एज पर सर्विस रूल्स, if the
allegations are found to be malicious, false or misleading documents, in that case same kind of action will be taken against the woman, ठीक है, एज पर सर्विस रूल्स। बोलो हाँ है ना, बात समझ में आ गई आपको? और वेयर नो सर्विस रूल्स एग्जिस्ट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो यू सी इन दिस केस मुझे आपको बस समझाना चाहिए, ये समझिए आप इसमें कि इंक्वायरी रिपोर्ट में एलिगेशंस, वन सेकेंड, एलिगेशन ऐसे करते हैं, कॉमन करते हैं, इंक्वायरी रिपोर्ट में व्हाट इज दिस एलिगेशन, एलिगेशन प्रूव्ड 13 में, in that case action as per service rules, okay, or otherwise prescribed। ये था 1। सेक्शन 13 में हमने देखा था, मैंने लिखा है, समझा देता हूँ, आई बिलीव अब समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसमें, कि अगर इंक्वायरी रिपोर्ट में ये कि एलिगेशन प्रूव्ड है, देन एक्शन कैसे होगा, एज पर सर्विस रूल्स होगा, अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट होगा, सही है ना, क्योंकि उसी के खिलाफ रिस्पोंडेंट के विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा, सही है। नाउ एक्शन ये क्या है, नोट प्रूव्ड हो सकता है, सेकंड क्या है, नोट प्रूव्ड, बोर्ड देखिए, दिस इज नोट प्रूव्ड, देन नो एक्शन, ये भी 13 से डिराइव होता है। अगेन नेक्स्ट सिचुएशन इज दिस इज व्हाट कंप्लेंट malicious, false knowledge और डॉक्यूमेंट्स फोर्स्ड हैं और मिसलीडिंग है, ये थर्ड सिचुएशन हुई। इन दैट केस एक्शन अगेंस्ट वुमेन, एक्शन अगेंस्ट वुमेन और अदर पर्सन लिखा है यहाँ पे, देख लीजिएगा। तो आई बिलीव अब आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से कि ये 3 सिचुएशन क्या क्या हैं। एक में है एक्शन अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट, ठीक, हा रुको एक सेकेंड में,
हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? सोनम क्या सर, सोनम सिंगल की ये टीम जरा इसको रिकॉर्ड पे लेना। सोनम सिंगल ने क्या कहा है? सर बट डज नॉट प्रूव्ड इनडायरेक्टली मीन्स मैलिशियस कंप्लेंट। नहीं नहीं नहीं, यही तो मैं समझाना चाह रहा था आपको। दोबारा समझाता हूँ, देखिए मैं एक है कि सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ, सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ, कंप्लेंट भी ट्रू थी, बट शी कुड नॉट प्रूव इट। Suppose the lady says that at about 5 p.m. my boss, that the employer, called me to his chamber and then he misbehaved with me. Fine. Now this is what her allegation. But now CCTV camera was seen, footage was seen, and there was it is found that at that relevant point of time even the employer was not present in the premise, वो वहाँ पे था ही नहीं। सही है, एक तो ये हो गया। तो एक ये क्या होगी, दिस इज फॉल्स, फॉल्सिटी इज देयर, ये दिख रहा है साफ साफ कि झूठा आपने फंसाया है उसको, कोशिश की है। दूसरी सिचुएशन क्या है, इट इज ऑन रिकॉर्ड, it is on record that he was there, the girl also entered into the room, fine, but CCTV camera was not there, वहाँ पे कोई कैमरा था ही नहीं। तो the allegation could not be proved कि मिसबिहेव हुआ था या नहीं हुआ था। तो in that case you cannot say कि when allegation is not proved it is always false। अगर एक चीज़ फॉल्स अगर कोई प्रूव नहीं हो पाई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो झूठा ही एलिगेशन होगा। फॉल्सिटी का मतलब है फॉल्सिटी इज प्रूव्ड विद सम पॉजिटिव प्रूफ, कोई ना कोई प्रूफ ऐसा है, कोई सबूत है जिससे दिखता है कि ये झूठी बात थी, ये हो ही नहीं सकती थी, ये मैलिशियस है। एक हुआ यू आर नॉट एबल टू प्रूव इट, आप इसको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, बट ये भी प्रूव नहीं हुआ कि ये फॉल्स भी है, ये भी प्रूव नहीं है। Neither falsity is proved nor allegation is proved, but when the one is what allegation is proved, one is falsity is proved, ये दोनों चीज हो गई एकदम अपोजिट हो गई। एलिगेशन इज प्रूव्ड और यहां पर है falsity proved, यहां पर उसका झूठापन प्रूव हो गया, और इन बिटवीन में है कि it could not be proved, allegation could not be proved। so just because allegation prove नहीं हो पाए हैं सोनम, हम ये नहीं कह सकते these allegations are false। अब बात समझ में आई आप लोगों को? कम ऑन। माही गौतम, मुखी गौतम, in case of malicious complaint we can say that bad intention is there। मुखी गौतम says that malicious complaint means मुखी गौतम का कहना है कि फॉल्स सॉरी मैलिशियस कंप्लेंट का मतलब ये हुआ कि बैड इंटेंशन इज देयर। यस, मैलिशियस मींस दैट ये मानेगा नहीं गला मेरा। मैलिशियस कंप्लेंट मींस it is filed with some kind of malified intention, दुर्भावनापूर्ण, बैड इंटेंशन आप कह सकते हैं, दुराशा से कह सकते हैं आप ये। तो दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट। तो लाइक यू विल हैव टू प्रूव दैट दिस वाज ए फॉल्स कंप्लेंट। तो फॉल्सिटी इज ए डिफरेंट थिंग, ये है न्यूट्रल कंडीशन कि प्रूव नहीं कर पाए। ऐसा कई बार होता है, क्रिमिनल केसेस में भी होता है कई बार कि एक्यूज इज एक्विटेड, accused is acquitted in the absence of evidences। accused को इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि उसके विरुद्ध sufficient evidence नहीं थे। ये अलग बात होगी sufficient, और ये सेकंड बात है कि it is on record that he was made victim of a false complaint, उसको false केस में फंसाया गया था।
तो इन दो तीनों बातों में अंतर है। तो आई बिलीव अब आप इसको समझ पा रहे होंगे। ये मैंने आपको बताया था सेक्शन 13-14 का सम अप। एक सिचुएशन होती है कि एलिगेशन इज प्रूव्ड और एक एलिगेशन है नॉट प्रूव्ड और एक है कंप्लेंट इज मैलिशियसली फाइल्ड, मैलिशियस है या फॉल्स है या डॉक्यूमेंट्स फोर्स्ड है या मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स है। तो आई बिलीव अब आपको अच्छे तरीके से सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। सेक्शन 14 नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट ए मियर इनएबिलिटी, देखो वही बात आ गई, ए मियर इनएबिलिटी टू सब्सटेंशिएट ए कंप्लेंट और प्रोवाइड एडिक्वेट प्रूफ नीड नॉट अट्रैक्ट एक्शन अगेंस्ट द कंप्लेनेंट अंडर दिस सेक्शन। तो प्लीज सी द वर्ड मियर इनएबिलिटी, मात्र असमर्थता, मात्र मियर इनएबिलिटी फॉर व्हाट, टू सब्सटेंशिएट ए कंप्लेंट नीड नॉट अट्रैक्ट एक्शन अंडर दिस सेक्शन। कि अगर कोई लेडी, अगर वो कोई पुरुष जो जिससे भी कंप्लेंट फाइल की है, इफ ही इज नॉट एबल टू सब्सटेंशिएट ए कंप्लेंट, जो कंप्लेंट फाइल की गई है उसको सब्सटेंशिएट करने का मतलब है उसको वो प्रूव नहीं कर पा रहा है, असमर्थ है, इनेबल है, इनेबिलिटी है। तो जस्ट बिकॉज शी इज इन अनेबल, जस्ट बिकॉज द पर्सन फाइलिंग द कंप्लेंट इज अनेबल टू प्रूव इट, उसके सपोर्ट में कुछ कह नहीं पा रहे हैं, सपोर्ट में कुछ सबूत नहीं दे पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नो एक्शन कैन बी टेकन अंडर दिस सेक्शन। तो वही मैंने आपको बिना पढ़े पहले बताया था इससे पहले कि फॉल्सिटी प्रूव करना, मैलिशियस प्रूव करने के लिए यू नीड सम पॉजिटिव प्रूफ टू प्रूव दैट दिस इज, ये नहीं कि प्रूव नहीं कर पा रही जनाब, ये है ही फॉल्स कंप्लेंट, ये है ही मैलिशियस कंप्लेंट। अगर इनेबिलिटी क्या है, पढ़ो दोबारा, मियर इनेबिलिटी टू सब्सटेंशिएट ए कंप्लेंट, ये बात हुई, या टू प्रोवाइड एडिक्वेट प्रूफ, पर्याप्त सबूत नहीं दे पा रहे हैं। अगर पर्याप्त सबूत नहीं दे पा रहे हैं तब भी कोई एक्शन नहीं होगा, एक्शन तभी होगा when the complaint is found to be malicious or false to the knowledge of the maker or misleading or false documents have been filed। कर लेंगे आप लोग, हाँ या ना बताइए। नेक्स्ट पढ़िए अब ये malicious intent shall be established after an inquiry in accordance with the procedure prescribed before any action is recommended। very good। ये मैं शाबाशी खुद को दे रहा हूँ, पता है। वही बात देखो, ये ऐसा तो है नहीं, देखो मेरे तो जुडिशरी में आते नहीं है ना एग्जाम, ये तो मैं रटता तो हूँ नहीं, मैं इसे पूरा होमवर्क करता हूँ, फिर स्लाइड्स वगैरह बना लेता हूँ अच्छे तरीके से, ताकि, लेकिन ये मुझे ध्यान नहीं था कि ऐसा आएगा इसमें डायरेक्ट में। तो जो मैंने अभी आपको समझाया एग्जैक्टली वही लाइन्स, ये एक्सपीरियंस आती है आपके, एग्जैक्टली वही लाइन आ गई। क्या है देखो, मैलिशियस इंटेंट शैल बी स्टैब्लिश्ड, मैलिशियस इंटेंट को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने कहा था कि पॉजिटिव प्रूफ होना चाहिए उसका कोई ना कोई। वो just mere inability to substantiate the complaint or adequate proof will not attract the action in this case। उसका भी यही मतलब है, इसका भी यही मतलब है कि if you want to prove that the complaint is malicious, ठीक है, woman आई inquiry report है ना, he had subjected to me to sexual harassment, he caused sexual harassment of me। okay madam, prove it। अब मैडम प्रूव करेंगी, प्रूव नहीं कर पाया, अब वो कहेगा सर झूठी कंप्लेंट थी सर, मुझे फंसाना चाहती थी, ठीक है तू प्रूव कर, अब तू प्रूव कर झूठा है तो ये आया कि शैल बी एस्टैब्लिश्ड। अगर तुम कह रहे हो कैसे, तो अगर ये सच्चाई होती इसकी कंप्लेंट में तो ये प्रूव कर पाती ना, अगर ये महिला प्रूव नहीं कर पाई तो वो हुआ इनएबिलिटी टू प्रोवाइड द सफिशिएंट प्रूफ, इनएबिलिटी टू सब्सटेंशिएट द कंप्लेंट हुआ। बट इफ यू आर सेइंग दिस कंप्लेंट इज मैलिशियस, यू प्रूव इट, इट शैल बी एस्टैब्लिश्ड, मैलिशियस इंटेंट शैल बी एस्टैब्लिश्ड। आई बिलीव अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। दिस इज जुडिशियस अप्रोच।
malicious intent shall be established after an inquiry. इंक्वायरी होगी प्रॉपर अच्छे तरीके से. फाइन, बर्डन शिफ्ट हो रहा है, सही कह रही हैं अनीता मैडम. इन आफ्टर एन इंक्वायरी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बिफोर एनी एक्शन इज रिकमेंडेड. कर लेंगे आप लोग ये. बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, दिस इज नॉट द कोर्ट. तो वहाँ पर टिपिकल एविडेंस एक्ट के रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं यहाँ पर. ठीक, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के बेस पे काम चलेगा. एवरीवन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. प्रॉपर तरीके से एक दूसरे को एग्जामिन करने का मौका मिलना चाहिए. चलें साहब, तो यहाँ पर ये हो गया. अब आगे बढ़िए, फर्दर में क्या आएगा, नेक्स्ट क्या है. where the internal committee, local committee, as the case may be, arrives at a conclusion that during the inquiry any witness has given false evidence or produced any forged or misleading document, it may recommend to the employer of the witness or the district officer, as the case may be, to take action in accordance with the provisions of the service rules applicable to the said witness, और वही if where no such service rules exist in such manner as may be prescribed. सेम है वही. वहाँ पर अभी तक कंप्लेंट के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि विटनेस हैज़ प्रोड्यूस फॉल्स एविडेंस है या फॉल्स डॉक्यूमेंट है, जिसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं. तब क्या होगा, वही एक्शन होगा एज पर सर्विस रूल्स. एज पर सर्विस रूल्स होगा. सर्विस रूल्स एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं, देन फिर एज इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड. तो ये हुआ आपका सेक्शन 14. तो अभी तक आपने एक बात देखी होगी इसमें कि कंप्लेंट फाइल हुई सेक्शन 9 में. सेक्शन 9 में कंप्लेंट फाइल हुई, 10 में कंसिलिएशन, 11 में इंक्वायरी हो रही है, 12 में ड्यूरिंग जो अदर रिलीफ्स हैं, 13 में रिपोर्ट है, 14 में भी रिपोर्ट के ही कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहे हैं. तो कौन सी जो रिकमेंडेशंस आ रही है, एलिगेशन का जो एलिगेशन हुआ और जो प्रूव हुआ एलिगेशन, तो क्या हो रहा है, एक्शन इज बीइंग रिकमेंडेड एज पर द सर्विस रूल्स. उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी, कार्रवाई क्या होगी कि एज पर सर्विस रूल्स उसको मिसकंडक्ट माना जाएगा, या जो भी सर्विस रूल्स में उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए वैसे सर्विस रूल्स में होगी. डोमेस्टिक वर्कर में क्या कहा था कि 509 एंड अदर सेक्शंस में क्रिमिनल एक्शन उस पर लिया जाएगा. बात समझ में आ रही है. तो ये है इंटर डिपार्टमेंटल एक्शंस की बात चल रही है. अभी देखिए आगे बढ़िए. अभी इसी में साथ साथ सेक्शन 28 पर अपनी नजरें इनायत कर लीजिए. सेक्शन 28 पर भी मैं उसकी स्लाइड पढ़ाऊंगा अभी सेक्शन 28 पर भी, लेकिन सेक्शन 28 को यहीं पर बताना जरूरी है आपका. देखिए क्या है ये, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन एंड नोट इन डेरोगेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ ऑफ द टाइम बीइंग इन फोर्स. कि इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो कैसे हैं, सेक्शन 28 की बात कर रहे हैं हम. इन एडिशन है ये, इन एडिशन टू एनी अदर एक्ट. सेक्सुअल हरेसमेंट सेक्शन 354A IPC में भी पनिशेबल है. तो ये नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है सेक्सुअल हरेसमेंट कर रहा है तो वो IPC के प्रोविजन से बच जाएगा, समझे, वो अलग है. इन एडिशन है ये. तो सेक्शन 28 ने जो कहा है कि इन एडिशन टू एनी अदर एक्ट का है, उसका मतलब ही ये है कि ऐसा नहीं है कि तो हल्के में छूट गया, कोई सजा नहीं हो रही है. ये तो सर्विस रूल्स के हिसाब से जो उसके जो सर्विस पर उसके इंसेंटिव्स को काटा जाएगा, उसके जितने इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं, सर्विस से सस्पेंड हो सकता है, और दुनिया भर के जो एक्शंस लिए जा सकते हैं सर्विस रूल्स में, उसकी बात कर रहे हैं अभी ये. बस ये इट इज इन एडिशन. तो सेक्शन 28 के साथ पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगी, क्लैरिटी आएगी इसकी यहाँ पर. ये बोलो हाँ या ना.
कुछ आया समझ में? बोलो बबुआ। बोलो एवरीवन। अगेन आपको जाना पड़ेगा सेक्शन 13 को समझने के लिए। कुछ खास बात आपको दिखाते हैं। सेक्शन 13 थर्ड, प्लीज सी दिस इज सेक्शन 13 क्लॉज थर्ड। व्हेन द एलिगेशन हैज बीन प्रूव्ड, इन दैट केस recommendations will be what? That action be taken and yes, to deduct such sum। ये है आपका सेक्शन 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज सेकेंड। To deduct such sum as it may consider appropriate from the wages, salary or wages of the respondent, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। To be paid to the aggrieved woman or her legal heirs in accordance with the provisions of section 15। Because I want to start section 15, तो मेरे लिए यहाँ से कनेक्ट करना जरूरी था इसको। तो अब अच्छा अनीता निशा ने क्या कहा? यस मैडम कंप्लीट। हाँ जी, देखिए अब यहाँ पे समझिए क्या है। सेक्शन 13 की क्लॉज थर्ड का सेकंड पार्ट में कहता है कि अगर एलिगेशन प्रूव हो जाते हैं तो मिसकंडक्ट के द्वारा एक्शन तो होगा ही होगा। एक था डिडक्शन ऑफ सच सम फ्रॉम द सैलरी और वेजेस, कि रिस्पोंडेंट की सैलरी से, रिस्पोंडेंट के भत्तों से उतना सम लिया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा और किसे दिया जाएगा? एग्रीव्ड वुमेन को दिया जाएगा, पीड़ित महिला को दिया जाएगा। सही है। तो जो उसकी सैलरी से रुपया पैसा कटना था वो कैसा कटना था? इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15। धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार उसकी सैलरी से, उसके वेजेस से कुछ पार्ट को कट किया जाएगा और वो पैसा एग्रीव्ड वुमेन या उसके उत्तराधिकारी को दे दिया जाएगा। सही है, ये बात था। तो सेक्शन 15 को हमने समझना है। आपकी सेक्शन 15 क्या कहता है इस संदर्भ में? प्लीज गो टू सेक्शन 15, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन। जो कंपनसेशन उसको दिलाया जाना था सेक्शन 13 में जिसका जिक्र है, तो उसकी गणना कैसे होगी, सेक्शन 15 उसकी बात करता है। तो अगेन प्रीलिम्स में हेडिंग से क्वेश्चन आ सकता है। P4 प्रीलिम्स लिख लीजिए यहीं पर हाथ के आगे। देखिए क्या है। फॉर द पर्पज ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द सम्स टू बी पेड टू द एग्रीड वुमेन, ये डिटर्मिनेशन ऑफ द सम्स टू बी पेड टू होम, टू द एग्रीड वुमेन अंडर क्लॉज सेकेंड ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ 13, यानी कि 13 क्लॉज 3 पार्ट सेकेंड, जिसकी बात हमने अभी की। क्या होगा? इंटरनल कमेटी, लोकल कमेटी एट द केस में भी शैल हैव रिगार्ड टू फर्स्ट। ये क्या क्या ध्यान रखेगी कमेटी? ये देख लीजिए बस आप। ये द मेंटल ट्रॉमा, पेन, सफरिंग एंड इमोशनल डिस्ट्रेस कॉज टू aggrieved women। mental trauma, pain, suffering and emotional distress caused to the aggrieved women। तो पीड़ित महिला को जो मानसिक आघात पहुंचा है, जो दर्द पहुंचा, जो दुख झेले, जितना इमोशनली डिस्टर्ब रही वो, मानसिक रूप से जितना वो पीड़ित रही उन सब, वो भी एक फैक्टर होगा कि हाउ मच मनी शुड बी पेड एज ए कंपनसेशन टू हर। ठीक है। और ये कंपनसेशन मनी कहां से ली जाएगी?
रिस्पोंडेंट भाई साहब के सैलरी अकाउंट से काटी जाएगी। सही है, तो ये एक हुआ फैक्टर और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट फैक्टर्स, एंड अगेन मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट फैक्टर्स आर टू बी टेकन केयर ऑफ वाइल अवॉर्डिंग द कंपनसेशन टू द एग्रीड वुमेन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है मेंस का। एंड दूसरा ये हुआ, इनको समझाने की जरूरत नहीं है, पढ़ने काफ़ी होगा। द लॉस इन द कैरियर अपॉर्चुनिटी ड्यू टू इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, सेक्सुअल हरेसमेंट का जो हादसा हुआ, जो घटना घटी, उसकी वजह से उसकी कैरियर अपॉर्चुनिटी का जो लॉस हुआ, उसका जो कैरियर बन सकता था, जो लॉस हुआ, उसको भी ध्यान में रखेंगे। मेडिकल एक्सपेंसेस इंक्योर्ड बाय द विक्टिम, अगर कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हैं तो उनका ध्यान रखा जाएगा। फॉर फिजिकल और साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, फिजिकल ट्रीटमेंट भी हो सकता है, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी हो सकता है। द इनकम एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द रिस्पोंडेंट, ये भी देखा जाएगा कि इतनी इनकम कितनी है रिस्पोंडेंट की। फिजिबिलिटी ऑफ सच पेमेंट इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट, ये भी देखा जाएगा कि वो जो पैसा है वो इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं या लमसम, लमसम का मतलब वन टाइम पेमेंट हो सकती है इतने पैसे की, या इंस्टॉलमेंट में करना जरूरी होगा। तो A B C D E, these are the 5 factors which must be taken care of, which must be taken care of at the time of awarding compensation to the aggrieved women as per section 13 clause 3 sub clause 2। तो आई बिलीव ये 5 फैक्टर्स हैं, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, प्रीलिम्स में भी इन सारे 5 फैक्टर को ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच आर द फैक्टर्स विच आर टू बी टेकन केयर ऑफ, विच आर नोट द फैक्टर्स। तो 5 फैक्टर को याद रखना आप लोग, ठीक है। बताइए कहीं कोई दिक्कत? सेक्शन 16 पर आ जाइए अब। दिस इज सेक्शन 16। इसका रेफरेंस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एक बार, है ना। सेक्शन 16 क्या रहे हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार, लेकिन फिर दोबारा पढ़ेंगे। इसमें रेफरेंस देखा था हम लोगों ने केवल, है ना। सेक्शन 16 अगेन, अब देखिए सेक्शन 16 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एज वेल। Prohibition of publication or making known contents of the complaint and inquiry proceedings, इससे कंटेंट पढ़ते हैं। Notwithstanding anything contained in the Right to Information Act 2005, कि Right to Information Act, Right to Information Act में कुछ भी होते हुए, it means this act will override Right to Information Act। क्या है? The contents of the complaint, the contents of the complaint under section 9, identity and address of the aggrieved woman, respondent and witness। देखो क्या क्या, आइडेंटिटी एंड एड्रेसेस की बात कर रहे हैं। आइडेंटिटी एंड एड्रेसेस, ये 2 बातें हुई, किस किस की? ऑफ द एग्रीव्ड वुमेन, और किसकी? रिस्पोंडेंट अपोजिट पार्टी की, और किसकी? विटनेसेस की। विटनेसेस की भी आइडेंटिटी और उनका एड्रेस, रिस्पोंडेंट की भी आइडेंटिटी और उसका एड्रेस, इन तीनों की बात कर रहे हैं। एंड एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंसिलिएशन एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स, रिकमेंडेशंस ऑफ इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी एट द केस में भी, एंड द एक्शन टेकन बाय द एम्प्लॉयर और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट shall not be published or communicated or known to the public, press or and media in any manner। मीनिंग देयर बाई, मैंने आपको पढ़ दिया एक बार, समझ गए होंगे आप इसमें। इट मीन्स वॉट, ये जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं, एवरीथिंग शैल रिमेन कॉन्फिडेंशियल। क्या क्या कॉन्फिडेंशियल रहेगा, अब मैं समझा देता हूँ। देखिए क्या क्या रहेगा, इस लाइन को याद रखना। शैल नॉट बी पब्लिश, ना उसका पब्लिकेशन होगा, ना ये कम्युनिकेटेड होगी, ना ही पब्लिक को बताई जाएगी, ना ही प्रेस को बताई जाएगी, ना ही किसी मीडिया को। इसको पढ़िए पहले, देखिए दोबारा।
शैल नॉट बी पब्लिश्ड, शैल नॉट बी पब्लिश्ड, पब्लिकेशन नहीं होगा। शैल नॉट बी कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेट नहीं करेंगे किसी को। और मेड नोन टू द पब्लिक, और पब्लिक को भी जानकारी नहीं देंगे, ना ही प्रेस को जानकारी देंगे। और एंड मीडिया इन एनी अदर मैनर व्हाट, जो अबव, जो उपरोक्त मेंशन, अबव मेंशनड डिटेल्स हैं वो पब्लिश नहीं होंगी, कम्युनिकेट नहीं होंगी, पब्लिक को बताई नहीं जाएंगी, मीडिया को बताई नहीं जाएंगी। अब कौन कौन से डिटेल्स हैं उनको हम दोबारा पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली सेक्शन 16 इज प्रोहिबिटिंग, सेक्शन 16 इज प्रोहिबिटिंग द डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन डिटेल्स। सेक्शन 16 क्या कर रहा है, कुछ डिटेल्स के डिस्क्लोजर को प्रोहिबिट करता है, और यही उसकी हेडिंग है, प्रोहिबिशन। देखो सेक्शन 16 की हेडिंग को जस्टिफाई कर लेंगे आप लोग, आप पढ़ करके। प्रोहिबिशन ऑफ व्हाट, प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिकेशन पर रोक लगाई जा रही है। और मेकिंग नोन, यानी कि पब्लिक ना हो उस पर रोक लगाई जा रही है। क्या, कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट के कंटेंट्स को, इंक्वायरी के कंटेंट्स को, इसको। अब मैं दोबारा पढ़ता हूं, आप मेरे ख्याल से इतना समझे नहीं समझे मुझे बताइए। तो व्हाई दिस सेक्शन इज प्रोहिबिटरी इन नेचर, सेक्शन 16 इज प्रोहिबिटरी इन नेचर बिकॉज इट प्रोहिबिट्स द डिस्क्लोजर। यू कैन नॉट पब्लिश, you cannot communicate, you cannot make public certain details, and what are those details you should not know। अब ये है, देखिए कौन कौन से डिटेल्स का पब्लिकेशन, कम्युनिकेशन, मेकिंग नोन टू पब्लिक और मीडिया इज प्रोहिबिटेड, ये है। अब आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। नंबर 1, कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 9, कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेंट मेड अंडर सेक्शन 9। सेक्शन 9 में जो कंप्लेंट फाइल की गई थी उसके कंटेंट्स क्या थे, कहानी क्या थी, उसको यू कैन नॉट पब्लिश, यू कैन नॉट कम्युनिकेट, यू कैन नॉट मेक नोन टू द पब्लिक और मीडिया, ये प्रोहिबिशन है। सेक्शन 9 की जो कंप्लेंट है उसके कंटेंट्स का डिस्क्लोजर नहीं हो सकता, इसीलिए हेडिंग में लिखा है कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट। देखो ये रहा, इस तरीके से आपको हेडिंग याद रहेंगी, कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट। ठीक, अब आइए और क्या क्या, आइडेंटिटी, एड्रेस ऑफ द एग्रीड वुमेन एंड रिस्पोंडेंट। एग्रीड वुमेन 1, रिस्पोंडेंट 2, विटनेसेस 3। इन 3 लोगों की आइडेंटिटी एंड एड्रेसेस ये नहीं होंगे, ये दूसरी बात आ गई अभी है। पहली बात क्या थी, कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेंट थे। दूसरी बात क्या है, इन 3 एग्रीड वुमेन, रिस्पोंडेंट, विटनेसेस, इन तीनों का ही खेल है सारा। एग्रीड वुमेन ने कंप्लेंट फाइल की है, रिस्पोंडेंट विल डिफेंड हिमसेल्फ, विटनेसेस विल सपोर्ट बोथ पार्टीज। उन सभी की नेम, आइडेंटिटी हो गई, यानी कि आइडेंटिटी में क्या आ गया, नेम, और उनका वल्द, उनकी जो भी डिटेल्स हो सकती हैं वो सब नहीं होंगे डिस्क्लोज, उनके एड्रेस डिस्क्लोज नहीं होंगे। तो ये हो गया दूसरी बात। पहला था कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट नंबर 1, और इट इज रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ द एग्रीड वुमेन, रिस्पोंडेंट, विटनेसेस। एंड थर्ड देखिए, एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंसिलिएशन एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स, ये हुआ आपका थर्ड सर्कल, ये थर्ड इंफॉर्मेशन हो गई आपकी कि इफ देयर वर एनी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स। सेक्शन 10 में जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स हैं वो, या फिर कोई इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स में, इनकी डिटेल्स भी वही प्रोविजन होगा, शैल नॉट बी पब्लिश्ड, कम्युनिकेटेड, मेकिंग नोन टू पब्लिक और मीडिया। ये 3 बातें हो गई। नंबर 4, रिकमेंडेशंस ऑफ इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी एट द केस में भी। नंबर 4, इन कमेटीज की रिकमेंडेशंस क्या थी। रिकमेंडेशंस आपको पता ही है क्या क्या होती हैं। 13 में क्या रिकमेंडेशन होती है, टेक एक्शन और नो एक्शन। 14 में क्या है, टेक एक्शन अगेंस्ट द एग्रीड वुमेन, मेकिंग फॉल्स कंप्लेंट और एनी पर्सन। तो 3 तरह की रिकमेंडेशन हैं जो हम पढ़ चुके हैं, तो वो भी डिस्क्लोज नहीं होंगी। और फिर
उसकी रिकमेंडेशन के बाद में, कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद में एक्शन क्या लिया गया, एंड एक्शन टेकन बाय द एम्प्लॉयर और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ये फिफ्थ है, इट शुड ऑल्सो नॉट बी डिस्क्लोज्ड। दीज 5 डिटेल्स shall not be published, communicated, made known to the public, press or media in any manner। come on, ये आपको बात समझ में आई या नहीं आई? दिस इज सेक्शन 16। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा डिटेल में क्लैरिटी से नहीं समझाया जा सकता। मैंने पूरी कोशिश की कि आपके माइंड में इसको मैं फिक्स कर दूं किसी तरीके से, बस कम ऑन। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन में बी डिसिमिनेटेड, इंफॉर्मेशन में बी डिसिमिनेटेड regarding the justice secured to the victim of sexual harassment under this act without disclosing the name, address, identity or any other particulars calculated to lead to the identification of the aggrieved woman and the witnesses। ये क्या कह रहे हैं, ये आप इन्होंने क्या कह दिया, ये इन्होंने एक एक्सेप्शन के रूप में बता दिया आपको। इंफॉर्मेशन में बी डिसिमिनेटेड, समझे इसका क्या मतलब है? देखिए, इंफॉर्मेशन में बी डिसिमिनेटेड रिगार्डिंग द जस्टिस सिक्योर टू द विक्टिम्स, यानी कि जो पीड़ित है, अगर पीड़ित को न्याय मिला है रिगार्डिंग जस्टिस सिक्योर्ड टू द विक्टिम, यानी कि किसी विक्टिम को, पीड़ित को यदि न्याय मिला है, इसके संबंध में सूचना प्रसारित की जा सकती है, डिसिमिनेट की जा सकती है। क्यों? इससे लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ देखो, एक सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटना घटी थी, उसको न्याय मिल गया। तो ये ध्यान रखना, देखो बहुत टेक्निकल है ये, जितना इनोसेंट है उतना है नहीं, ये लाइन बहुत टेक्निकल है। कैसे सेंस में? देखो, पहली बात आप ध्यान रखिए, विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम, एड्रेसेस, आइडेंटिटी और एनी अदर पर्टिकुलर। तो इंफॉर्मेशन जो डिसिमिनेट होगी वो सब्जेक्ट टू दिस प्रिकॉशन होगी। पहली बात तो इंफॉर्मेशन अगर डिस्क्लोज होगी तो तब भी यू विल हैव टू टेक प्रिकॉशंस, नेम, आइडेंटिटी, एड्रेस, नेम, एड्रेस, आइडेंटिटी, नेम, एड्रेस, आइडेंटिटी, ये सब डिस्क्लोज नहीं होने चाहिए। एक बात, एक प्रिकॉशन ये होगा। और इंफॉर्मेशन भी सब में नहीं होगी, जैसे मान लीजिए कि फॉल्स कंप्लेंट थी, उसमें नहीं होगी। अभी ये यहां पर क्या होगी, देखो ये सारी इंफॉर्मेशंस नहीं जाएंगी, सभी केसेस में इंफॉर्मेशंस नहीं होंगी डिसिमिनेट। कब होंगी? तब होंगी। इंफॉर्मेशन में बी डिसिमिनेटेड रिगार्डिंग द जस्टिस सिक्योर्ड टू एनी विक्टिम ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। ऐसी ही सूचनाओं में, मीन्स इफ 100 complaints were filed, 100 complaints were filed, and in those complaints 10, in case of 10 complaints, allegations were proved and the victim got the justice, उसको न्याय मिला, तो वो 100 में से केवल 10 की इंफॉर्मेशन को डिसिमिनेट किया जा सकता है। एंड इन दैट केस ऑल्सो प्रिकॉशंस शैल बी टेकन दैट नेम, आइडेंटिटी, एड्रेसेस एटसेट्रा आर नॉट डिस्क्लोज्ड। तो वेरी टेक्निकल। देखिए, मैंने देखा यूट्यूब पे, देखा वो लोगों को 1 घंटे में, 2 घंटे में करा दिया। इतना बकवास करा रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं जो यूट्यूब पे जाकर पढ़ रहे हैं इसको। जुडिशरी का तो एंगल ही खत्म है, बस पूरा का पूरा जनरल सेंस समझा दिया उसका किसी भी तरीके से, एक तरीके से एक्टिंग करके, कभी ऐसे बोलेंगे, कभी वैसे बोलेंगे, एक अलग से एक नाटकीयता ला करके उसमें। और जो लीगली पढ़ना चाहिए जैसे सेक्शन को, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। आप ये देखो
कितना चीज छुपी हुई थी इसके अंदर, इतना आसान ही निकालना है। ये इंफॉर्मेशन डिसमिनेट तो हो सकती है, लेकिन सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन हो सकती है केवल, इट इज नॉट ऑल द इंफॉर्मेशन। इस लाइन की वजह से रिगार्डिंग जस्टिस सिक्योर टू एनी विक्टिम, है कि नहीं है? प्लीज लेट मी नो, ये बात आपको समझ में नहीं आई? तो कौन सी इंफॉर्मेशन डिसमिनेट हो सकती है? रिगार्डिंग द जस्टिस सिक्योर टू द विक्टिम, ये वाली इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन हो सकता है। प्रिकॉशन फिर भी नॉन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस एंड नेम का रखना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, सही है? ताकि एग्रीव्ड वुमेन की जो पीड़ित पक्ष है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो। आइडेंटिटी ऑफ एग्रीड वुमेन विटनेसेस का डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए। ये हुआ सेक्शन 16। सेक्शन 7 में क्लॉज 3 देखो जरा, समझे? इधर देखो, अभी है सेक्शन 16 में आ गया आपका प्रोहिबिशन। तो ये कौन करेगा, किसके पास होती है सबकी जानकारी? इट इज ऑल अबाउट विद द दिस कमेटी एंड द मेंबर्स देयर ऑफ। अब सेक्शन 7 है, थर्ड क्लॉज 3, सेक्शन 7, एंड इसी के साथ साथ सेम मिलेगा आपको सेक्शन 4, सेक्शन 4 की क्लॉज 5। दोनों ही चैप्टर्स, दोनों ही सेक्शन 7.3 और सेक्शन 4.5 ये पहले पढ़ा चुका हूं। दे डील व्हेन कि व्हेन इंटरनल कमेटी, सेक्शन 4 कहता है इंटरनल कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं या मेंबर्स हैं उनके रिमूवल की बात करते हैं। और यहाँ पर बात 7.3 बात करता है चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द लोकल कमेटी के मेंबर को कब कब हटाया जा सकता है। तो उनमें से जो एक ग्राउंड थी वो ये थी, उस समय मैंने रेफरेंस दिया था, अब इसको लिंक कर रहा हूं दोबारा। वेयर द चेयरपर्सन और एनी मेंबर ऑफ द लोकल कमेटी कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16। इट मीन्स वॉट कि जिन डिटेल्स का डिस्क्लोजर नहीं करना था, अगर उन डिटेल्स का डिस्क्लोजर आपने कर दिया तो क्या माना जाएगा? यू आर कॉन्ट्रावीनिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16 एंड दैट कैन बी ए ग्राउंड ऑफ योर रिमूवल। आपको आपके पद से हटाया जा सकता है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राउंड। तो दिस ग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई बिलीव अब आपको जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो एक हायर लेवल पर चली गई होगी अच्छे तरीके से। बोलो हाँ है ना? सो अब ऐसा करते हैं, 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 15 मिनट के आधे घंटे के ब्रेक लेते हैं ताकि चाय पी के ढंग से आराया जा सके। और मुझे भी कुछ अगले वाले सेक्शंस की पीपीटी हैं वो अपलोड करनी पड़ेगी इसमें। अप टू 17 है ये, तो बाकी की जो 13 है 30 की उसको करते हैं। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं 1:05 पे, 5 से 10 मिनट के बीच में मिलते हैं। You are now muted.